Okay, good morning to all. So, you know that in electric drives and control, basically last classes focus on the DC drives and the different types of control, like separately excited motor for the chopper control, also the different phase control rectifiers, and different modes of operations of the DC drive. So, in the last classes, those who are absent in the last classes, go to the channel, YouTube channel, and just watch all the videos available. All videos are available, and also some numerical problems are also discussed in the last classes. Now, the today class is basically focused on the induction motor drives. So before going to the induction motor drives, first just revisions of the induction motor means general revisions. You know the basic electrical machines. Already you have all classes are already in the last semester. You know that what is the principle and working principles of the induction motor, speed control, and the starting methods and different types of speed control equations. All things are already you know. But before going to the drives means you know that that is the control, means induction motor control by using what? Semiconductor devices. Semiconductor devices means you know that the inverters like that. Okay, so control rectifier like that. So before going that, we just today the class basically focus on the just discussion class. Today is the basically the discussion class about the induction motor and just a revision. Okay, then we will start the different types of operations of the induction motor using what? The semiconductor devices. Okay, means in your syllabus, one of the new methods, new things is that the sleep power recovery drive. Okay, sleep power recovery drive. You know the different types of speed control of induction motor. Okay, by using voltage, by using frequency, by using sleep like that. But you don't know what is the sleep power recovery drive. Sleep power recovery drive. So basically, you know that the induction motors are basically two types. You know, everyone I think basic electrical machines like that. That is squirrel cage and slip ring type of induction motor. And you know the constructions of both the machines, like a slip ring and the what a squirrel cage. So slip ring type, you know the in the case of slip ring type, stator and rotor both have a winding. Stator and rotor both have a winding. But in case of what? In case of squirrel cage, only stator have a winding and rotor have a like cage rotor structure. That is the copper simply bar type structure. There is no winding. So in case of slip ring, both the rotor and stator are accessible. Means you can supply is given to both the stator and rotor, because in slip ring types rotor has also winding. So rotor resistance control as sleep power recovery control are only applicable for the what machine? Sleep ring type of induction machine. Okay, and now you know that the sleep power, that is the air gap power. So air gap power is wasted. You know the rotor resistance control, the power is wasted in the form of heat. So sleep power recovery drives are used basically for recover of this sleep power and just use the feedback to the source. So one by one, we have to just study one by one. All the topics will be cleared. So now the today basically revision class of the induction motor. So now let's start, and I will ask some question, some group discussion like that. So just a revision means just quick revisions of the induction motor. Okay. Okay. So Krishnadev, am I audible, Krishnadev? Yes, sir. Okay. So Krishnadev, let me explain what are the advantages of and disadvantages between the two types of the induction motor, slip ring types and the squirrel cage types. Just tell me in simple word. What are the advantages of the slip ring type of induction motor? What are the advantages of slip ring types of induction motor? Just tell me. I think that all of you know these simple things are basically general Sir, things. first of all, slip ring and squirrel cage have advantage, or we call it advantage or disadvantage, that one is used in high torque and low speed.
and another one is used in is low torque and high speed as Which well one? as for Which one? Clearly mention which one for high starting torque, which low starting torque. Just clearly mention which motor. Which motor? sir. Slip ring is of low speed and high torque machine, and another one squirrel cage is high torque and low speed machine. Anyone? Anyone? What are the difference between this? Just tell me what are the difference between squirrel cage and the slip ring type, that is also known as wound rotor. Just tell me. Just tell me. स्क्वायरल केज वाला में सर उसमें पोल का क्रिएशन मतलब जो होता है ना रोटर में वो मतलब उसमें मतलब पोल क्रिएशन जो होता है इंडक्शन के थ्रू हो जाता है सर, मतलब जितना मतलब स्टेटर में रहेगा उतना ही रोटर में अपने आप हो जाता है सर। I am just asking the basic question. What are the difference between this squirrel cage and the wound rotor? स्क्वायरल केज मैंने अभी भी बताया कि स्क्वायरल केज का यदि हम लोग बात करते हैं तो रोटर इज नॉट एक्सेसिबल। रोटर को तो पहले हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पहला डिसएडवांटेज तो वहीं पर हो गया। यदि हम लोग स्क्वायरल के स्लिप रिंग का बात करते हैं तो हम लोग का क्या है, रोटर में हम लोग कुछ भी एडिशनल रेजिस्टेंस हो या रोटर में हम लोग इन्वर्टर हो या कुछ भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके बेसिकली मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक बात को समझो, ठीक है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्लिप रिंग में? तो एक एडवांटेज है ना स्लिप रिंग में। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट हम लोग इजीली हम लोगों को कहां से मिल जाएगा, वुंड रोटर में, मतलब स्लिप रिंग में, ठीक है? डिसएडवांटेज का यदि हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज का कि स्लिप रिंग का डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज यही होता है जो साइड में थोड़ा बल्क हो जाता है इन कंपेयर टू स्क्वायरल केज, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हम लोग का क्या होता है, स्लिप रिंग भी अरेंजमेंट, ब्रश का भी अरेंजमेंट होने लगता है और एक एक्स्ट्रा हम लोग का वाइंडिंग भी लग जाता है, तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। और स्लिप रिंग होने के कारण इसमें हम लोग हैजार्डस एनवायरनमेंट में थोड़ा यूज नहीं कर पाते। लेकिन व्हेन जस्ट वी आस्क अबाउट द वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड में, जैसे विंड में जब यूज करेंगे हम लोग तो हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं इसको, विंड में, विंड पावर जनरेशन में किसको यूज करेंगे, नॉट स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। व्हाई? बिकॉज हम लोग रोटर साइड से एक्सेस कर सकते हैं, रोटर साइड से हम लोग मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द रोटर पावर इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मेन पावर। सो रोटर पावर में यदि हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो कन्वर्टर का जो रेटिंग होगा, कन्वर्टर का रेटिंग वो भी हम लोग का कम हो जाएगा। कन्वर्टर का रेटिंग भी हम लोग कम होगा क्योंकि हम लोग का क्या 30 to 35% ही हम लोग का जो रोटर का जो पावर होगा एज कंपेयर टू द मेन पावर, एक्चुअल पावर। सो हम लोग सिंपली रोटर को कंट्रोल करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पूरे मशीन को। तो हम लोग का जो कन्वर्टर का यूज करेंगे, जो कन्वर्टर का जो रेटिंग होगा वो भी कम हो जाएगा, और रेटिंग कम होगा तो हम लोग का कॉस्ट भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगा। तो ये कंपेयर में हम लोग यदि बात करेंगे तो इस कंपेयर में हम लोग का ये स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर बहुत ही जो है कि हम लोग का एडवांटेज एज कंपेयर टू द स्क्वायरल केज। जब वेरिएबल स्पीड का हम लोग बात करते हैं, वेरिएबल स्पीड का यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो इंडक्शन मोटर जनरली हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर हम लोग का क्या है, जनरली हम लोग जानते हैं भी कि स्क्वायरल केज ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है? So now you just see this slide, the structure. I think all of you know that this is the rotor of the what, slip ring. Rotor is also have a winding, see here, rotor also have a winding, and these are the slip rings 1 2 3, okay? And now this is the squirrel cage like a structure is that, ठीक है? तो देखो एक्चुअली यदि कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो बोल सकते हो कि एडवांटेज में इसका यही फायदा होता है, रोटर में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस को, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल कहां होगा, विच मोटर? हम लोग स्क्वायरल केज में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम लोग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। क्लियर? ये बात क्लियर है? दोनों मोटर में हम लोग का बेसिक डिफरेंस पता है, हम लोगों को क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली हम लोगों को जो टॉपिक है, हम लोग का जो सिलेबस है जो ड्राइव में, वो इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है? वो भी हम लोगों को बेसिकली स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव को फोकस किया गया है। लेकिन मैंने सोचा कि इंडक्शन मोटर का पूरा बेसिक को ही पढ़ा देता हूँ क्योंकि हम लोग का सिलेबस ज्यादा नहीं है,
हम लोग का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में जो जो टॉपिक यूनिट 1 से जो भी टॉपिक छूटा हुआ रहेगा उसको भी मैं और एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, कल फिर इसका एडवांस कंट्रोल टेक्निक पे जाएंगे, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ तक सबको पता है। नाउ आई एम आस्किंग वन वेरी कॉमन क्वेश्चन, वन जनरल क्वेश्चन, ओके। जतिन कुमार झा, Jatin Kumar Jha, you know that induction motor is what? Self-starting or not self-starting? You know this one? Induction motor is self-starting. Induction motor is self-starting. Self-starting. Sir, self-starting. Okay. Self-starting. So just explain this one. Self-starting. How the rotating magnetic field is created? How the rotating magnetic field is created, generated inside the rotor? कैसे हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है? व्हाट विल हैपन इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर? दैट्स व्हाई द इंडक्शन मोटर इज जस्ट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. जस्ट टेल मी, बताओ, सेल्फ स्टार्टिंग, हाउ दिस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग? कैसे हम लोग बोलते हैं हाउ द टॉर्क इज डेवलप्ड, हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड? जस्ट एक्सप्लेन. उसका सेल्फ स्टार्टिंग का सर सही से वो डेफिनेशन तो याद नहीं है उसका. anyone कृष्णा देवा, जस्ट एक्सप्लेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मतलब तुम सपोज यू आर इन फेसिंग वन इंटरव्यू and this is the induction motor, very basic question. So one of the any examiners just ask you the question, just explain how the rotating magnetic field is generated inside the machine in induction machine. That's why the torque is developed and the motor is now rotating. So explain how. सर 3 फेज ऐसी सप्लाई देते हैं तो उसमें हम लोग का स्टैटिक जो स्टेटर है ना सर, उसमें हम लोग इस सप्लाई देते हैं तो उसमें एट ए टाइम सर एक फेज मैक्सिमम होता है, तो उस कारण से सर वहां पर जो फ्लक्स क्रिएट होता है, तो अगर फर्स्ट ए फेज के कारण अपवर्ड है तो फिर बी फेज के कारण सर उतना अच्छा क्लियर नहीं है सर, थोड़ा सा रिवीजन नहीं है सर. Okay, now I am just explaining this simple word. So you know that three-phase induction motor. Just explain. Three-phase induction motor. So there is a three-phase supply is given. So you know the three-phase balance supply. First, what is that? Three-phase balance supply. A, B, C. There are three-phase balance supply. Then what will happen? Suppose now we have this supply is given to the motor. That is the stator of the winding. Stator. Okay, three-phase balance supply. So you know that A, B, C phases. There are three phases. Okay, so at a time, one phase, you know that the magnitude, maximum positive value of one phase, suppose A, then minimum negative value of the B and C, like that. You know that the three-phase supply. So three-phase sinusoidal supply is given to the what? Induction motor stator. Then what will happen? Suppose now at a time the phase A will be maximum. Then now due to this phase A, the flux, the resultant flux, you know that 120 degree shifted. All of you know that the three phase means all the A, B, C are 120 degree phase shifted. 120 degree especially phase shifted, and the structure, winding structure is also the 120 degree phase shifted. So what will happen here? So whenever the three-phase supply is given to the induction motor, then the time is passes, then you know that the sinusoidal supply means at a time, at an instant, phase will be maximum, phase now B is maximum, then now phase C is maximum. So when the phase A is maximum, then the resultant flux in which direction? That is the phase A direction. Now time is passes, then what will happen? Phase B, the flux in the direction of phase B. Now again the time it passes, then the resultant flux in the phase C. So in this way, when the time it passes, then the flux is like rotating 120 degree shifted, like that when the sinusoidal supply. So in this way, a rotating magnetic field is generated. So now the speed of this rotating magnetic field is known. You know that this is the what? Synchronous speed of the what? Motor. The synchronous speed if the motor is what? The rotating magnetic field. The speed of the rotating magnetic field is nothing, the synchronous speed of the motor.
I think all of you just clear this topic. What is the rotating magnetic field? कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछे तो देखो एक्सप्लेन करना होगा ही सब, नहीं तो बस इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन में ही फेल हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है? आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग क्रिएट हो रहा है? यस सर। Okay, now you know that basic thing is that अब हम लोग का क्या है कि रोटर कंडक्टर आर स्टेशनरी कंडीशन एट द स्टार्टिंग टाइम। व्हाट इज रोटर कंडक्टर इन स्टेशनरी कंडीशन? अब क्या हो रहा है कि हम लोगों का फ्लक्स इज रोटेटिंग। जैसे देख रहे हो इस मिरर में, देखो इस डायग्राम पे देख सकते हो, फ्लक्स इज रोटेटिंग। देखो एफ 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 फ्लक्स इज टाइम इट पासेस, द फ्लक्स इज रोटेटिंग। तो रोटर कंडक्टर, you know that what Lorentz force, and also the F is equal to BIL sin theta. Whenever a current conductor is placed in magnetic field, you know that this simple thing, torque is produced. So what will happen? F is equal to BIL sin theta. You know that this force, Lorentz force, F is equal to BIL sin theta. Now rotor conductor जब हम लोग का स्टेशनरी कंडक्टर है, स्टेशनरी कंडीशन में, अब उसमें हम लोग का इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, प्रोड्यूस, then what will happen? The force is developed. Now due to this force, the torque is developed. Now the rotating magnetic field is rotating, continuously rotating, like that, rotating. Then you know the relative motion. अब क्या करना चाहेगा रोटर? अपने इस स्पीड को कैच करना चाहेगा। रोटर जो होगा वो स्टेशनरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड को कैच करना चाहेगा, ताकि रिलेटिव स्पीड उसमें जो होगा मिनिमम से मिनिमम हो, रिलेटिव मोशन मिनिमम से मिनिमम हो, ट्राई टू कैच अप द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो इस कारण क्या होगा कि रोटर जो होगा मूव करना शुरू होगा, सेल्फ स्टार्टिंग। बट व्हाट विल हैपन? You know that the induction motor is what types of motor? Asynchronous motor. You know that. I think all of you know that. Induction motor is also known as asynchronous motor. So why this motor is known as asynchronous motor? Anyone tell me? Why this motor is known as asynchronous motor? Anyone tell me? Anyone tell me? Why this motor is known as asynchronous motor? So actually you know that. What is the sleep? What is the sleep? Ns minus Nr. What is the sleep? Ns minus Nr. And what will happen if the rotor speed is just equal to the synchronous speed? Then you know that there is no relative motion between the rotating magnetic field and the rotor. Then what will happen? There is no induced EMF, there is no induced current, and no torque will be developed in the rotor. Then rotor now will just slow down and stop. Okay? So always there is some difference between the rotating magnetic field synchronous speed and the rotor speed, and that difference is called what? Sleep. That is Ns minus Nr. I think that all you are just get this point. Ns minus Nr. This is called sleep. This is called what? Sleep. Clear है यहाँ तक? सबको clear है? Clear है ना? So ये सब कुछ वेवफॉर्म्स है, कुछ एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी स्टडी इन द लास्ट सेमेस्टर, मैंने जैसे ऐसे ही बता दिया। एक्चुअली ये कुछ एनिमेशन स्लाइड्स है, लेकिन अभी एनिमेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, सब एनिमेशन वीडियो था, ये सब सारा एनिमेशन वीडियो था। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ना तो चल नहीं रहा है, ये सब सारा जो है कि एनिमेशन वीडियो था। मैंने सोचा था चला के दिखाऊंगा, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम है, जूम पे चल नहीं रहा है। ये सब सारा रोटेटिंग करता है, ये सब जो मैं टाइम के साथ में बता रहा हूँ, तो ये टाइम के साथ में एक्सिस चेंज होगा, टाइम के साथ में फ्लक्स का पोजीशंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस टाइप से जो है कि ये रोटेशंस है। ठीक है, मैं ये स्लाइड भेज दूंगा तो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये जो सिंपल कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, सो यू नो दैट स्लीप का कॉन्सेप्ट, इस सब का कॉन्सेप्ट जो है कि बेसिकली पता होगा। स्लीप कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, क्या कंडीशन होता है, रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्लीप क्या होता है, तो ये सब के लिए रोटर का फ्रीक्वेंसी सब कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को पता होगा, है ना। यदि हम लोग बात करते हैं कि रोटर जो है कि स्टेशनरी, रोटर जो है स्टेशनरी कंडीशन में होगा, तो उस समय क्या होगा, समझ में आएगा कि रोटर का स्पीड 0 हो जाएगा, Nr is equal to 0. Then what will happen here? What will happen? Sleep will be maximum. ठीक है, तो ये सब कंडीशन पता होगा सबको, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा नहीं होगा। और फाइनली हम लोग जानते हैं कि रोटर का फ्रीक्वेंसी दैट इज द एस टाइम ऑफ द व्हाट,
स्टेटर फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, FR is equal to SF, कुछ रिलेशन जो कि आप लोगों को पता होगा, FR is equal to SF. ओके, क्लियर। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट भी पता होगा, यू नो दैट इंडक्शन मोटर जस्ट लाइक a rotating transformer. So in case of transformer, you know that primary is secondary, and here the rotor and stator. Okay, so basic equivalent circuit in this slides, just see here basic equivalent circuit. R2 are just the rotor, here stator, R1 for the stator and R2 for the rotor. The dash means that the referred to the stator. You know that primary and secondary referred value for the transformer. So similarly, but here only one thing is the mechanical movement, mechanical part as compared to the transformer. So this is the rotor equivalent circuit. Now torque equations, all of you know the torque equations of the induction motor. All of you, how the torque is generated, how are the torque equations for the induction motor. So this is the torque expression, see here torque expression. तो बेसिक जो थिंग है, मैं जो है कि आप लोग को पूरा एक रिवीजन कराना, मैंने कहा था कि इस क्लास में जो होगा क्विक रिवीजन होगा इंडक्शन मोटर का, जो कि जो भी भूल चुके हो तो सारा कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन, स्टार्टिंग टॉर्क का जो कंडीशन है देख सकते हो इस स्लाइड में, जो कि है सारा अवेलेबल है इसमें। स्टार्टिंग टॉर्क में क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क क्या हो रहा है, स्पीड टॉर्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो समझते हैं और इस सब के बारे में जो है, ठीक है। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो इस कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। तो कोई एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 3 रीजन में बेसिकली डिवाइड करते हैं, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन एंड द हाई स्लिप रीजन। ओके, लो स्लिप, मीडियम स्लिप एंड हाई स्लिप। सो अकॉर्डिंग टू दैट, यू नो दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, तो ये कब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कब हो रहा है। लो स्लिप रीजन का जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट विल हैपन इन द लो स्लिप रीजन, लो स्लिप कब होगा, लो स्लिप कब होगा, मींस जब सिंक्रोनस स्पीड s इक्वल टू 0, मींस रोटर का स्पीड, जब रोटर का स्पीड, व्हेन द रोटर स्पीड इज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, देन स्लिप इज वेरी वेरी लो, उस समय क्या होगा, स्लिप हम लोग का बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय टॉर्क होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, इसके कारण हम लोग का जो स्टार्टिंग में वो क्या हो रहा है, सिंपली बोल सकते हैं कि वो सिंपली वो हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह से बढ़ेगा। नाउ मीडियम स्लिप रीजन में आएंगे, तो मीडियम स्लिप मतलब स्लिप जो होगा हम लोग का वो मीडियम कब होगा, जब हम लोग मशीन्स में लोड बढ़ाएंगे। यदि हम लोग मशीन में लोड बढ़ाते हैं तो व्हाट विल हैपन, हम लोग यदि इंक्रीज करते हैं लोड को तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करने लगता है। मशीन का जब हम लोग लोड बढ़ाने लगते हैं तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इस समय भी हम लोग देखेंगे एक रिलेशन हम लोग का टॉर्क का आता है, तो उस टॉर्क में हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और टॉर्क क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली स्लिप होता है, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक ना। तो जो जिसको हम लोग ब्रेक डाउन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द रोटर स्पीड विल बी मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट विल हैपन, अब जब हम लोग का रोटर का स्पीड ही ज्यादा हो जाए सिंक्रोनस स्पीड से, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। स्लिप विल बी नेगेटिव, दैट इज द जेनरेटिंग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये क्लियर होगा, दैट इज द सुपर सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जो क्या कहते हैं, सुपर सिंक्रोनस मोड, ठीक है ना। व्हेन द रोटर स्पीड विल बी मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड, then the slip will be negative, and this condition of operation is called super synchronous modes of operation, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक चीज है जो कि मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ इंडक्शन मोटर का। आप लोग जो है कि पहले भी पढ़े, नोट्स होगा वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, जनरेटिंग रीजन, मोटरिंग रीजन, ब्रेकिंग रीजन, सारा चीज। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन, एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द पावर फ्लो स्कीम फॉर द इंडक्शन मोटर। पावर का जो ट्रांसफर होता है, मेरे पास एक मोटर रखा हुआ इंडक्शन मोटर, स्क्वायर एलकेजी मान लेते हैं, ठीक है। सो पावर का ट्रांसफार्मर किस वे में हो रहा है, लॉसेस जो है कि कैसे हो रहा है, कोई भी बता सकते हो इसमें क्या होता है कि पावर हम लोग, जैसे हम लोग क्या किए, स्टेटर में, स्टेटर हमें मोटर रखा हुआ, मेरा 3 फेज सप्लाई है, वो स्टेटर का वाइंडिंग में दे दिया, मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। सो ये जो स्टेटर पे मैंने 3 फेज सप्लाई दिया इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये पावर जो होगा हम लोग का किस फॉर्म में निकल रहा है, रोटर का शेफ्ट में पावर जो डेवलप हो रहा है, मैकेनिकल डेवलप हो रहा है, पावर का मैकेनिकल पावर निकल रहा है मैकेनिकल पावर, है ना, टोटल जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। तो इस बीच में, इन बिटवीन 3 फेज सप्लाई से रोटर का जो मैकेनिकल शेफ्ट हम लोग का निकल रहा है, मैकेनिकल शेफ्ट में पावर, ये जो पावर डेवलप हो रहा है रोटर से, स्टेटर से रोटर में, तो इस ड्यूरेशन में जो पावर फ्लो स्कीम है इंडक्शन मोटर का, पावर फ्लो स्कीम,
कोई भी यदि समझा सकते हो कि यस सर नाउ आई एम गिविंग दिस पावर, दिस इज कन्वर्टेड, दिस कन्वर्ट टू नाउ, तो फाइनली आई वी हैव जस्ट फाइंड आउट दिस पावर, कोई भी बता सकते हो तो बताओ। anyone just idea, just explain. Now I am asking the question, Sonoj Kumar Mato, tell me. यस सर। हाँ बताओ, कैसे, क्या पावर क्या सर होता है, कैसे करते हैं, एकदम सुनो, एकदम कॉमनली हमको तुम बताओ। जैसे कि कोई स्टूडेंट बैठा है, आप इंडक्शन मोटर को समझा रहे हो कि ठीक है ऐसे हम लोग सप्लाई दे, ऐसे पावर जा रहा है, ऐसे पावर जा रहा है, हम लोग को क्या पावर मिल रहा है, कौन सा पावर को क्या नाम देंगे, सारा चीज को डिटेल से हमको समझाओ। चलो चलो। हाँ सर, जैसे कि सबसे पहले मतलब स्टेटर में जैसे इनपुट पावर देंगे, जैसे सबसे पहले सर स्लिप ग्रेटर देन 1 के लिए सर, ठीक है, कोई भी केस के लिए तो हमको उसमें पहले देखेंगे। बताओ। तो उसमें सर जैसे कि इनपुट जैसे सप्लाई मतलब पावर देंगे सर, तो पावर देंगे तो कुछ पावर मतलब लॉस हो जाएगा सर स्टेटर में, जैसे कि उसमें कॉपर लॉस या कोर लॉस के तौर पर लॉस हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ लॉस होने के बाद जो पावर बचेगा सर वो उसमें मतलब एयर गैप पावर के रूप में मतलब फिर से रोटर में जाएगा सर। और ठीक है, रोटर में बोलते जाने के रहो। बाद फिर जो होता है, हाँ सर, तो रोटर में बोलो जाएगा बोलो। सर, फिर रोटर में भी मतलब वहां पर जाने के बाद कुछ लॉस होगा सर, जैसे विंडेज लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। लॉस होने के बाद वो सब जितना भी लॉस होगा, और लॉस माइनस होने के बाद जो पावर बचेगा सर वो पावर मतलब कुछ पावर जाएगा सर, जैसे कि रोटर कॉपर लॉस में मतलब लॉस हो सकता है। हम्म और कुछ पावर मतलब जो होता है जो बचेगा सर, जो हम्म बच जाएगा दोनों के बाद, वो हम्म। आउटपुट पावर मिलेगा हमको। यस सर। स्टेटर का आउटपुट पावर मतलब चलते, स्टेटर का आउटपुट पावर दैट इज द इनपुट ऑफ द रोटर, यही ना होगा। स्टेटर का जो आउटपुट आएगा दैट इज द यस इनपुट ऑफ द सर। रोटर। स्टेटर का जो आउटपुट यस सर। दैट इज द इनपुट ऑफ द रोटर, है ना। अब बात ये आती है कि स्टेटर का आउटपुट पावर होगा क्या, व्हाट इज द स्टेटर, स्टेटर का जो हम लोग का बात करेंगे पावर, वो क्या होगा। ये कृष्णदेव बताओ तो क्या होगा। हम लोग का रोटर का इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द रोटर का जो इनपुट पावर वो क्या होगा। सर एयर गैप पावर जो लॉस जो हम्म। Discuss. Certo sono controllato topics di voce anche. Quello è चल में क्लियर बताओ। ये सर आवाज है सर। जो स्टेटर के बाद का जो लॉस सब हम लोग अगर एक्सक्लूड कर दें तो स्टेटर के बाद एयर गैप पावर होता है, तो उसमें जो हम लोग वहाँ जो लॉस मतलब कि पावर जाता है उसको एयर गैप पावर बोलते हैं। और उसके बाद भी सर जो हम लोग का जो रोटर में जो लॉस मतलब कि सब अगर उसको भी इंक्लूड कर दें और अगर हम एयर गैप पावर से उस लॉस को हटा दें तो फिर वहां से हमको डेवलप्ड टॉर्क मिलता है सर, पावर मिलता है सर, जो कि हम लोग को रोटर का पावर और वहां से फिर हम लोग को आउटपुट मीन्स एयर गैप पावर इज बेसिकली द इनपुट पावर टू द रोटर। ओके, एयर गैप पावर जो हम लोग स्टेटर में हम लोग पावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर से रोटर, स्टेटर से रोटर में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है दैट इज द एयर गैप पावर, उसी को हम लोग एयर गैप पावर बोल रहे हैं। एंड एयर गैप पावर इज सिंपली द इनपुट पावर टू द रोटर। क्लियर और नॉट, यही ना बात बोल रहे हैं, ठीक है। इनपुट पावर टू द रोटर। तो एक्चुअली हम लोग का स्टेटर पे भी तो लॉसेस है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कुछ भी वाइंडेज लॉस, कॉपर लॉसेस तो होगा ही, कोर लॉसेस भी होगा, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक है। तो रोटर का जो इनपुट है, जो बेसिकली रोटर का जो इनपुट याद समझो बात को। तो रोटर का इनपुट में क्या होगा, मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है, और रोटर का इनपुट में हम लोग का क्या देखेंगे, जो रोटर का कॉपर लॉस, बेसिकली रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, एस इंटू रोटर इनपुट, एसपीजी। बेसिकली एसपीजी इज व्हाट, स्लीप पावर। एसपीजी इज व्हाट, बेसिकली स्लीप पावर। तो हम लोग का रोटर पे जो इनपुट होता है एयर गैप पावर, बेसिकली क्या होता है, एसपीजी। रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू व्हाट, रिलेशन पढ़े होंगे, एसपीजी व्हाट इज दिस इज द स्लीप पावर। ओके, एंड यू नो दैट दिस पावर इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, दिस स्लीप पावर इज नॉट कन्वर्टेड। यहीं से हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव।
जो कि सबसे फंडामेंटल जो ड्राइव डेवलप किया था, किसने किसने किया था? सर्वियस ड्राइव एंड द क्रेमर ड्राइव, दो साइंटिस्ट थे, क्रेमर एंड सर्वियस। तो उन लोगों ने ये स्लीप पावर को क्या किया था? यूटिलाइज किया। इसके कारण हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे स्लीप पावर रिकवरी स्कीम, स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव, दैट इज द क्रेमर ड्राइव एंड नाउ सेकंड वन इज द सर्वियस ड्राइव। क्रेमर ड्राइव एंड द सर्वियस ड्राइव हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इतना डिटेल जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट शुरू करूं स्लीप पावर आया तो ठीक है, कुछ बच्चे समझेंगे कि स्लीप पावर क्या है नहीं है, लेकिन 50% को समझ में आएगा, 50% को नहीं आएगा। इसीलिए मैं आज एकदम बेसिक फंडामेंटल ग्रुप डिस्कशन ये कर रहा हूँ। ये जो क्लास है फंडामेंटल क्लास, इसमें मैं पूरी तरह से आज एकदम डिटेल बता दूंगा कि क्या है नहीं है। पावर फ्लो एक्चुअली जब मोटर पढ़ रही हो तो पावर का यूटिलाइज कैसे हो रहा है, पावर का कन्वर्जन क्या हो रहा है, रोटर से स्टेटर, स्टेटर से रोटर में पावर का जो हम लोग फ्लो समझ रहे हैं, जो डायग्राम को समझ रहे हैं, वो स्कीम को समझना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर के मशीन के एक्चुअल व्यू को हम लोग समझेंगे, और तभी जाकर के हम लोग कन्वर्टर इन्वर्टर कंट्रोल लगा करके मशीन को समझेंगे। नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग स्टेटर पे क्या इनपुट दिए, स्टेटर से पावर का ट्रांसफर रोटर में क्या जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा रोटर कॉपर लॉस, और जो हम लोग का पावर जो इनपुट हो रहा है दैट इज द स्लिप पावर, दैट इज द रोटर का जो हम लोग सिंपल देख रहे हैं रोटर का इनपुट, दैट इज द एयर गैप पावर। ठीक है, अब समझ में आया होगा क्लियर। ठीक है, कि कैसे कैसे पावर और लॉसेस तो है ही, रोटर में भी तो हम लोग वाइंडेज फ्रिक्शन लॉस, रोटर मूव कर रहा है तो वाइंडेज फ्रिक्शन लॉस रोटर में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कीम मैंने अभी जो डिस्कशन किया हूँ, सो क्लियरली मेंशन इन दिस स्लाइड। इसमें मैंने वही चीज मेंशन किया, स्टेटर है, कॉपर लॉस होगा, रोटर पे इनपुट हो जाएगा, एयर गैप पावर होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, आउटपुट पावर में हम लोग फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉसेस भी होता है। ये सब मैंने क्लियरली इस स्लाइड में जो कि देख सकते हो, इसमें क्लियरली मेंशन है टोटल जो हम लोग का पावर फ्लो स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखो वन बाय वन करके मैं इसी तरह से बता रहा हूँ कि तुम लोग को ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पावर फ्लो स्कीम को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करेंगे, यू नो दैट इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। देन वन ऑफ द क्वेश्चन इज अराइजेस, देन why the starting methods are required for the induction motor? What are the startings of induction motor? Why the induction motor is, you know, the self starting? Then why? What are the purpose? What are the purpose? What are the functions of this starter in the induction motor? So anyone just explain what are the functions of this starter for the induction motor? Explain. सर विदाउट स्टार्टर अगर हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर को तो वो बहुत ही हाई करंट सर लाइन से लेता है सर, जिस कारण से सर आसपास का जो वोल्टेज है वो डीप हो जाता है सर, तो उसके कारण हम लोग को स्टार्टर यूज करना पड़ता है सर। तो वो हम लोग ठीक है, ओके 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 कृष्णा। ज्योति कुमारी बताओ। मेरा बात सही है। Just tell me, Jyoti Kumari, why the starter? What are the function of a starter? बोलो बोलेंगे भाई स्टार्टर क्यों स्टार्टर लगा रहे हैं भाई, हम तो जानते हैं कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टर क्या करेगा वहां पर लगा करके, क्या करेंगे स्टार्टर को, क्यों करेंगे यूज हम लोग स्टार्टर को? तुम यदि इंटरव्यू में बैठते हो क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग, तो हम लोग स्टार्टर क्यों यूज करेंगे, वाई, कारण तो देना होगा ना। तो यू नो दैट, very good. You know that all of you know that when the three-phase supply is connected to the induction motor, then what will happen? The rotating magnetic field is produced. Now rotor start rotating. This is simple, self-starting. Now at the time of starting, you know that rotor is stationary condition. So there is a raw relative motion, relative difference, the slip is unity, and the starting current is very large. That is the 4 to 5% of the rated current. This is the very high starting current. So when you without a starter, just supply is given to the three-phase winding of this stator, then what will happen? Motor winding may be burned.
इतना स्टार्टिंग का हम लोग करंट, क्योंकि रोटर तो उस समय हम लोग स्टेशनरी कंडीशन में रोटर मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय एट ए टाइम पे हम लोग का बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए जाना, लिमिटिंग द रिड्यूस द हैवी स्टार्टिंग करंट, reduce the heavy starting current, we just starters are used. Okay, so to provide the overload and under voltage protection also, to provide overload and under voltage protection, the starting of induction motors are used. ठीक है, नेक्स्ट में फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, विद इन 2